Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 1. In civics, chapter 1 name is our constitution. It means हमारा संविधान. Okay. So student, take your history civics book and open page number 1 of civics. Okay. Open chapter number 1 in civics and open page number 6 for right and answer of this chapter. Friends, you will write structured question and answer. Okay, so student, take your history copy also and start writing question number 1. Firstly, students, you will study about this picture. Okay, watch this picture. Okay, this picture. Okay, so students, question number 1A. Can you name this personality? It means क्या इस personality को आप नाम दे सकते हैं कि ये कौन है? ओके, जो कि पिक्चर है, जिसकी पिक्चर में जो पर्सन है, जिनकी ये पिक है, ये कौन थे? कैन यू नेम दिस पर्सनैलिटी? यस, ही वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो आप क्या लिखेंगे? नेम क्या है इनका? डॉक्टर BR अंबेडकर. AMBEDKAR अंबेडकर. Okay, next question of this chapter, question number first B. What is his contribution in framing the Constitution of India? संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था? ओके, क्या योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो आपको इस योगदान के बारे में लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, स्टूडेंट्स, on 29 August, he was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee and was appointed by the Assembly to write India's new Constitution. Okay, इनका क्या योगदान रहा था? You will write from starting point. Upon India's independence on 15 August 1947, the new Congress-led government invited Ambedkar to serve as the nation's first law minister, which he accepted. जो कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. ओके, तो इस क्वेश्चन में इनके योगदान के बारे में पूछा गया कि इन्होंने क्या किया था. ओके, so students, you will write on 29 August he was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee, and was appointed by the Assembly to write India's new Constitution. नए संविधान को लिखने के लिए इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने नया संविधान लिखा. यही इनका कंट्रीब्यूशन है संविधान को लिखने में, कंप्लीट होने में. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कब अडॉप्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था? सो यू विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 26 नवंबर NOVEMBER
BER 26 November 1949. 26 November 1949. Question number D. Name some prominent members of the Constituent Assembly. It means Constituent Assembly के कुछ prominent, कुछ main members थे. तो वो members कौन कौन से थे? Okay. So right answer of this question. Open page number 2. Okay. Start writing. Answer number D. First D. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, KM मुंशी, HN कुंजरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड C राजगोपालाचारी. Okay, so these are prominent members of the Constituent Assembly. तो आप सिर्फ इनका नेम लिखेंगे. जो ये prominent members थे Constituent Assembly के, सिर्फ आप इनका नाम लिखेंगे. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, KM मुंशी, HN कुंजरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड C राजगोपालाचारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Yes. With reference to the Constitution of India, what is the significance 26 January? It means 26 जनवरी को हम किस रूप में भारत के संविधान में किस तरह का महत्व है 26 जनवरी का, हम इसको किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं या किस रूप में हम इसको जानते हैं 26 जनवरी को. एंड वाई वॉज दिस डे चूजन फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स इसी दिन को क्यों चुना गया संविधान को प्रोमलगेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, फोर्स में लाने के लिए, इसी दिन को स्पेशली एज अ रिपब्लिक डे बनाने के लिए क्यों सोचा गया, क्यों इसको चूज़ किया गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, January 1950. Okay, you will write about this question, page number 2. Page number 2. Yes, open page number 2. This, and start writing answer number 2. Right. The Constitution came into force. The Constitution came into force on 26 January 1950, making India a republic. Okay, it means क्यों महत्व है, क्योंकि संविधान जो है वो फोर्स में आया था, इसको यूज़ करना, इट मीन्स ये अप्लाई हुआ था. ओके, प्रोमलगेट हुआ था. ओके, 26 जनवरी 1950 में, और इसको मेकिंग, इस दिन जो है भारत जो है वो रिपब्लिक बना था. ओके, so listen again and write. The Constitution came into force, on 26 January 1950, making India a republic. Full stop. January was especially chosen for the promulgation of the Indian Constitution because of its special significance in our struggle for freedom. Full stop. 26 January was especially chosen for the promulgation of the Indian Constitution because of its special significance in our struggle for freedom. At its Lahore session in 1929, the Indian National Congress passed the
पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, फुल स्टॉप। The Congress, full stop, the Congress Working Committee subsequently met on 2 January 1930 and decided to observe 26 January 1930 in Calcutta as स्वराज डे। ओके, 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, इसको डिसाइड किया गया था। ओके, इसलिए इसको डिक्लेयर्ड किया गया था एज अ पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में 26 जनवरी को। इसीलिए इसी दिन को 26 जनवरी को ही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस दिन को पूर्ण स्वराज के नाम से इसको एड्रेस किया गया था, डिसाइड किया गया था, इसीलिए रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी से स्टार्ट करना ही उचित समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नंबर 3, with reference to the fundamental rights and fundamental duties, answer the following questions. With reference to the fundamental rights and fundamental duties, answer the following. It means define fundamental rights. fundamental rights क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है? एंड नेक्स्ट है व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मैनी ड्यूटीज़ वर एडेड, और कितनी ड्यूटीज़ को, कितने कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया। सो फर्स्ट यू विल राइट हेडिंग डिफाइन फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स हेडिंग लिखेंगे। फर्स्टली आप लिखेंगे, यू विल राइट with reference to the fundamental rights and fundamental duties, answer the following question. Number 1, number A, define fundamental rights. fundamental rights क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, सो ओपन पेज 4, this is page number 4, this is about fundamental rights. Okay, note down. The Constitution of India confers and guarantees some basic human rights on all citizens of India without डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कन्फर्स एंड गारंटीज सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन को कुछ बेसिक राइट्स जो हैं दिए गए हैं, वो इट मीन्स वो उनकी, इट मीन्स गारंटी मीन्स होता है वो उनके राइट्स हैं, उन राइट्स को कोई नहीं छीनता है। ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, किसको? भारत के सारे नागरिकों के लिए है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी क्रीड का हो, रिलीजन से हो, जेंडर से हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म से हो। ओके, फुल स्टॉप। बेसिस रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। ओके, These rights are called fundamental rights, और इन राइट्स को, इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। These rights are fundamental because of 2 reasons. ये राइट जो है, ये अधिकार फंडामेंटल्स हैं। क्यों है? उसके लिए 2 कारण हैं, 2 reasons. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, गारंटीज दैम मीन्स पीपल को, जो कि पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, दैम। एंड द सेकेंड, दीज राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, और ये कोर्ट्स के थ्रू ये राइट दिए गए हैं, और इन अधिकारों को, ये राइट्स हैं, हर किसी के पास हैं, और ये अधिकार कोई एक दूसरे से नहीं छीन सकता है। कोर्ट्स कॉमा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू
certain subject to certain conditions. Full stop. This is answer number 3rd A. Next B. Okay. Define fundamental duties. Next heading you will write 3rd B. Define fundamental duties. Fundamental duties क्या है आपको इसके बारे में लिखना है. So open again page number 4. Okay. Start writing. Okay. The Indian, right answer, the Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is expected to perform. It means इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत की संविधान में जो इंडियंस हैं उनको कुछ ड्यूटीज़, कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो उनके देश के प्रति ड्यूटीज़ हैं. दैट एवरी सिटीजन इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. और वो ड्यूटीज़, वो कर्तव्य जो है हर इंडियंस को, एवरी इंडियंस को करना है. फुल स्टॉप. दीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़. फुल स्टॉप. एवरी सिटीजन नीड्स टू परफॉर्म दैम एज अ गुड एंड लॉ abiding citizen of India. Originally, fundamental duties were not included in the Constitution. जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किए गए थे, नहीं की गई थी. जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, ओके, इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन by the 42nd amendment of the constitution 10 fundamental duties were added. It means जो 42वां जो संशोधन हुआ था, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया. फुल स्टॉप. नाउ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड अंडर 86th Amendment Act 2002, so there are 11 fundamental duties in all. Okay, it means पहले जो है जब 42वां संशोधन हुआ था तब तक 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में. बट इन करेंट टाइम, एट प्रेजेंट जो है 11 ड्यूटीज़ हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, कर्तव्य जोड़े गए हैं. सो यू हैव 6 राइट्स एंड 11 duties. Okay, so student, this is answer number 3rd B. Next question you will write question number 3rd B. Listen again. The Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is expected to perform. These are known as fundamental duties. Every citizen needs to perform them as a good and law-abiding citizens of India. Originally, fundamental duties were not included in the Constitution. स्टार्टिंग में जो है फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड नहीं की गई थी. फुल स्टॉप. बाई द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड. नाउ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन all. Okay, next question 3rd C. When were the fundamental duties added to the Indian Constitution? कब ये जोड़ी गई? Okay, and how many duties were added, और कितनी ड्यूटीज़ जो हैं इसमें ऐड की गई? So right answer of this question. Okay, answer number 3rd C. This. Okay. By the 42nd amendment of the Constitution, 10 fundamental duties were added. Full stop. Now one more fundamental duty has been added under 86th Amendment Act
2002. So there are 11 fundamental duties in all. Okay, it means these lines are from page number 4. So for these lines you will open page number 4. पेज नंबर 4 पर ही मिलेगा, तो आप लिखेंगे वाई से लेकर के इन ऑल तक. ओके, बाई द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड, उसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था. नाउ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडिड अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक ड्यूटी को और ऐड कर दिया गया. सो नाउ अब टोटल जो ड्यूटीज़ है वो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 4, 5th and 6th. Students, you will write by next video. Okay, you will write answer of these questions 4 and 4, 5, 6. Okay, by next video. Okay, so it's enough for today. Take care yourself.